آج نافرمانیاں عام ہیں، گناہ عام ہے، ہر آدمی گناہوں میں ملوث ہے، معاملات بہت بیکار ہیں، حقوق اللہ کی رعایت تو ہے ہی نہیں، حقوق العباد کی بھی کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ آدمی، یہ انسان اللہ کے حق کی ادائیگی میں تو بہت پیچھے ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، بھائی کو بھائی سے شکایت ہے، بھائی کے درمیان جھگڑا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے شکایت ہے، آپسی تنازعات ہیں، آپسی لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ یہ جھگڑے، یہ تنازعات، یہ ناراضگیاں، یہ شکایتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا کرے تو شوہر کو بیوی سے کیا شکایت ہوگی؟ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا کرے تو بیوی کو شوہر سے کیا شکایت ہوگی؟ ماں باپ اگر اولاد کے حقوق کو سمجھ لے تو اولاد کو ماں باپ سے کیا شکایت؟ اور اولاد اگر ماں باپ کے احترام کو سمجھ لے تو ماں باپ کو اولاد سے کیا شکایت؟ معاملات صحیح نہیں ہیں ہمارے، کسی کا لے لیا تو دینے کا نام نہیں، قرض لے کر دینے کا نام نہیں لیتے، بلا وجہ کسی کی زمین پر حق جمانے لگتے ہیں، بلا وجہ باپ کی پراپرٹی میں زیادہ حصہ مانگنے لگتے ہیں، بہنوں کے حصوں کو کھا لیتے ہیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تو حقوق العباد ہے، یہ تو بندوں کے حقوق کا حال ہے کہ بندوں کے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں ہم وہ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بہن کا حق ہے نا بھائی، بہن کا حق نہیں دیا جاتا ہے، بیٹی کا حق نہیں دیا جاتا ہے، اولاد کے حق میں کٹوتی ہوتی ہے، ماں باپ کا احترام ملحوظ نہیں رکھا جاتا، پڑوسیوں کی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسی رشتہ داری نبھانی چاہیے وہ نہیں نبھائی جاتی ہے، معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، لین دین کا معاملہ صحیح نہیں ہے، دکاندار سے دکان کی چیزیں لے کر، دکان کا سامان لے کر اس کو پیسہ دینے کا نام نہیں لیا جاتا، کسی سے قرض لے لیا جاتا ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ یہ تو ہمارے معاملات کا حال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی برائیاں ہیں، زناکاری عام ہے، سود خوری عام ہے، گھر گھر میں سود گھس چکا ہے، ہر گھر میں سود گھس چکا ہے، گروپ لون کی شکل میں ہو یا بندھن لون کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، گھر گھر میں سود گھس چکا ہے، سود کی روٹی کھا رہے ہیں، وہ حرام کا لقمہ اندر جا رہا ہے، جبکہ سود کھانے والے کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ادھیکاری، چھوٹا سا پولیس والا اگر ہمارے خلاف ایکشن لے لے اور ہم کو چیلنج کر دے تو اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اسی سے ڈر جائیں گے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ کا ارشاد ہے، اس کے باوجود ہم سود کھانے سے نہیں رک رہے۔ سود کا بازار گرم ہے، چغل خوری عام ہے، دوسروں کی برائیاں تلاش کی جاتی ہے، ٹوہ میں رہتا ہے ہر آدمی، ٹوہ میں کون کس وقت کیا کر رہا ہے، کس کا کس سے کیا معاملہ ہے، کس کی برائی ہمیں تھوڑی سی مل جائے تو ہم اس کو اچھالتے پھریں، کس کے عیب پر ہم مطلع ہو جائیں، کس کا عیب ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم پوری بستی میں، پورا محلے میں ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ یہ عالم، حالانکہ عیب کو چھپانے کا حکم ہے، برائی کو چھپانے کا حکم ہے، کسی کی ذاتی ویکتیگت برائی اگر تم کو معلوم ہو جائے تو اس کو چھپاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کی اصلاح ہو تو اس کو اکیلے میں مل کر کہو کہ بھائی تمہارے اندر یہ برائی ہے، چھوٹی سی برائی، تم کو ہم نے یہ فلاں گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ بات زیادہ قابل اصلاح ہے، نہ کہ تم اس کی بات کو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹتے پھرو۔
इस्लाम में छुपाने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला सत्तारुल उयूब है, उयूब का छुपाने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को पसंद करता है, उस बंदे के ऐब को छुपाता है जो दूसरों के ऐब को छुपाता हो। लेकिन ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां, ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है। हमारे मुआशरे का कोई आदमी, कोई बंदा, कोई फर्द बशर दूध का धुला हुआ नहीं है। हर आदमी के अंदर बुराइयां हैं, मामलात में कमी है, झूठ बोलने का आदी है, चुगलखोरी का आदी है, सूद खाने का आदी है। मेरे दोस्तों, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अगर ये बुराइयाँ आकाए नामदार आखिरी नबी से पहले की उम्मतों में ये बुराइयाँ पाई जाती तो उन पर पत्थरों की बरसात हो जाती, उन पर आग की बरसात हो जाती, अल्लाह का आसमानी अजाब नाजिल हो जाता, ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाता, उन्हें तहस नहस कर दिया जाता, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता, नेस्तो नाबूद कर दिया जाता। अगर आज हम बचे हुए हैं इन तमाम गुनाहों के बावजूद, इन तमाम बुराइयों के बावजूद, अगर हम बचे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें रोज़ी दे रहा है, हम 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो ये अल्लाह का फजल व एहसान है, ये इस्लाम का इनाम है, ये आखिरी शरीयत का इनाम है, ये कुरान की देन है, ये अल्लाह तबारक व तआला का हद दर्जे का फजल व इनाम है कि उसने हमें बख्शिश और ढील दे रखी है। ये अल्लाह का इनाम है हमारा। पहली उम्मतों को इतनी छूट नहीं मिली, इतनी ढील नहीं मिली। आदमी रात को गुनाह करता था, सुबह उसके दरवाजे पर लिखा जा चुका होता था कि इस बंदे ने रात में चोरी की, इस बंदे ने रात में जिना किया है, उसके दरवाजे पर लिखा जा चुका हो। ये हमारे साथ इनाम है अल्लाह का कि हम बुराइयों में मुब्तला हैं फिर भी बचे हुए। लेकिन ये छूट, ये ढील हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में हम जिंदगी भर गुनाह भी करते रहे, बुराई भी करते रहे, लेकिन बच जाए। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। अल्लाह तबारक व तआला बार बार मौका नहीं देता। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है ज़लील व ख़ार कर देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में इज्जत है और उसी के हाथ में जिल्लत है। वो जिसे चाहता है इज्जत से नवाजता है और जिसे चाहता है बुलंदी से नीचे गिरा देता है, ज़लील व ख़ार कर देता है, रुसवा कर देता है। हमें खुद अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर ये तड़प होगी, ये कोशिश होगी कि हम बुराई की राह से हटकर सीधी राह इख्तियार करें, झूठ के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के रास्ते को अपनाएं, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को अपनाएं, बेनमाजी वाली ज़िंदगी ना गुजारें, नमाज पढ़ने वाली ज़िंदगी गुजारें, लोगों को तकलीफ देने वाली ज़िंदगी ना गुजारे, लोगों को राहत पहुंचाने वाली ज़िंदगी गुजारे। अगर हमने खुद ये ठान लिया कि इंशाअल्लाह हम अपने अंदर इस्लाह की कोशिश करेंगे, हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भी हमें इज्जत से नवाजेगा। आज कुछ गुनाह अगर हम कर रहे हैं तो हमारी नीयत की बदौलत, जो हमारे अंदर सही नीयत है, असली इस्लाह की नीयत है कि हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह इसकी बदौलत हमसे 2-4 गुनाह जो आज हो रहे हैं, कल ये गुनाह भी हमसे ख़त्म हो जाएगा और हम नेकी की ज़िंदगी गुजारने वाले बनेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे अंदर तड़प होगी, जब हमारे अंदर कुड़न होगी, जब हम ये सोचेंगे कि मरना है, जब हमारे अंदर ये बात होगी कि मरना है। आदमी ठान कर और सीना तान कर जिंदगी गुजार रहा है, ऐसा सोच रहा है कि मौत नहीं आएगी। अरे मौत तो तुम्हारे बाप दादाओं को भी आई है, तुम्हारे बड़े बड़े तुर्रम खां तुम्हारी नस्लों में आए और चले गए, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ थी, बहुत बड़े बड़े वो भी जमींदार थे, तकदार थे, उनके भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आज उनका भी नामो निशान मिट चुका है और आज उनको देखने वाला, उनका नाम लेने वाला कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। उनकी कब्र के निशान तक मिट चुके हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हें भी इस दुनिया से जाना है। तो इसलिए आदमी को अकड़ में नहीं रहना चाहिए कि आज मैं बहुत बड़ा हूँ, आज मेरे पास ये है, आज लोग मुझे सलाम करते हैं, वो तुम्हें सलाम नहीं करते, वो तुम्हारे वक़ार को सलाम करते हैं, तुम्हारे लिबास को सलाम करते हैं, तुम्हारी टोपी को सलाम करते हैं, तुम्हारी दाढ़ी को सलाम करते हैं, तुम्हारी दौलत को सलाम करते हैं। इसलिए आदमी किसी चीज़ के नशे में ना रहे, बल्कि अपने अंदर इस्लाह की लाने की कोशिश करे, अपने अंदर सुधार की कोशिश करे, नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, इस्लाम मज़हब हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला हुआ वो इनाम है, वो तोहफ़ा है कि जिसका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। आदमी बड़ा से बड़ा आदमी बन जाए,
हुक्मरान बन जाए, बादशाह बन जाए, सरमायादार बन जाए, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए, ज़मींदार हो जाए, लेकिन इस्लाम एक चीज़ जो हमारे दिल के अंदर बसा हुआ है, ईमान, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा कम दर्जे का आदमी, एक फ़कीर दर्जे का आदमी जिसके अंदर ईमान है, नमाजी है, नेक है, ईमानदार है, सच बोलता है, झूठ के रास्ते पर नहीं चलता, लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाता, और एक बहुत बड़ा आदमी है, तो ये छोटा सा मोमिन उस बहुत बड़े आदमी से बढ़ा हुआ है। क्यों? इसलिए कि इसके पास ईमान है। एक छोटा सा मुसलमान बड़े बड़े वज़रा से, प्राइम मिनिस्टर से, ओहदेदारों से, जज से, वकील से वो बढ़ा हुआ है, इंजीनियर से, डॉक्टर से, क्योंकि इसके पास ईमान है। एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है लेकिन ईमान नहीं है तो बेकार है। जिंदगी थोड़े बहुत मज़े देगी, लेकिन जब मौत आएगी तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसा मज़हब, ऐसा दीन अता फरमाया कि जिसमें नजात ही नजात है। क्या है इस्लाम में? इस्लाम में क्या है? नजात ही नजात है। दुनिया में आदमी ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, इस्लाम के रास्ते पर चले तो दुनिया में भी इज़्ज़त है, और आखिरत में मरने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत है ही, और जन्नत हमेशा हमेशा की राहत है। वहाँ तो न पसीना आएगा, न गर्मी लगेगी, वहाँ तो एक मुअतदिल मौसम रहेगा। आदमी जो मौसम चाहेगा वो मौसम मिलेगा, जो खाना चाहेगा वो खाना मिलेगा, जैसा चाहेगा वैसी ज़िंदगी गुजारेगा। ये जन्नत के हालात। तो अगर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, जन्नत की खुशगवार राहत वाली ज़िंदगी चाहिए तो इस छोटी सी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक बनाना चाहिए, है कि नहीं? बनाएंगे इंशाअल्लाह, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये कब होगा? जब हम इस्लाम के जानने वालों से पूछ कर अपनी ज़िंदगी गुजारें, उलमाए किराम से कुर्ब हासिल करें। हमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, हमने कुरान को नहीं पढ़ा, तो कोशिश करनी चाहिए कि कुरान को पढ़ें। कुरान जानने वालों के पास बैठे, उनसे बात सुने कि कुरान हमें क्या रास्ता बताता है, हदीस हमें क्या रास्ता बताती है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। तमाम तारीफ़ और अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें मुसलमान बनाया, आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और दरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।